Okay, hello guys. I hope all of you are good. So, guys, this is a recorded session, and like when you receive this session, when you see this session, I think it would be around 15 days left for the actual CAT exam. So, this session is about how we can plan the strategy for the last 10-15 days. क्या करें यार last के 10-15 days में so that I can score easily 99 percentile. And if not 99 percentile, at least 90 to 95 percentile. ठीक है. So uh, some of you might have that aim of getting a 99 percentile. Some people are satisfied with even 90 to 95 percentile. कुछ लोगों को लग रहा है कि यार 90 भी आ जाए तो खराब नहीं है. So today I'm going to talk about some of my experiences. Okay, when I gave CAT. Apart from that, whatever has been my understanding of how the whole English section works, and what is the best way to look at VARC, right? So like it's going to be like a sort of communication. I'm going to just put forward the things that I have always known, and some of my opinions, some of my like some of my judgments as to how the things are to be done. Okay, it might match with your version, it might not match with your version, but I can assure you that everyone is going to have something to learn from this session. तो गाइस कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको वो चीज़ें आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रोफाइल, आई हैड अ 99.74 percentile in verbal section on CAT 2016. The same year I had called from I am Bangalore, I am Indore, and I am Shillong. I have done my MPhil and MA in English literature, and I have a 10-year experience of teaching CAT students. So guys, currently I'm working with Unacademy. These are the other educators that you find on Unacademy. These educators are also teaching on the app of Unacademy. So Unacademy में around 30 more than 30 teachers है CAT के. Okay, so these teachers they teach for different subjects. Okay, so we have an Unacademy app which you can download and you will find access to these teachers. There are a lot of free sessions that you can access. There's also a paid program which you can access and you can get the entire range of sessions of these teachers, right? So guys, on Academy mein, like you can learn on the go. You can watch sessions, live sessions. Apart from that, you can watch the recording of the session. So the recordings are always available. Then you have the mock test, then you have the analysis. Okay, so after every mock that you give, you get a detailed report and a detailed analysis. So all the content and everything is provided as a package. So guys, अगर आप ये package लेते हो, ठीक है, so you can use my code HSING. So this is H and then SINGH. And if you take this course, 1 year wala would work out to be the cheapest. Okay, so you can look forward to this, right? Otherwise, I hope you are enjoying the free sessions. Okay, so like there are a lot of free content also, तो आप at least वो content तो access कर ही सकते हो ऐप पे जाके. ओके सो गाइस, आज का अपना एजेंडा स्टार्ट करते हैं. VARC स्ट्रैटेजी. व्हाट शुड बी माय VARC स्ट्रैटेजी, द प्लान फॉर द लास्ट 10 days. Okay, so students, VARC strategy is a bigger topic, and I've talked about it quite a few times. For the last 10 days is something that is a topic of limited scope, and there are few things that we can do in the last 10 days. तो मैं दोनों की बातें करूंगा कि यार VARC स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और अब जब 15 डेज के अराउंड बचे हैं, लास्ट 10 डेज, लास्ट 1 वीक, मैं क्या करूँ उनके अंदर कि जिससे मेरा VARC का स्कोर बेटर हो जाए, और एटलीस्ट बेटर नहीं हो तो कम तो नहीं हो, ठीक है? लाइक ऑब्वियसली if today I'm getting 80 percentile, I would like to get a 90-95, right? I would not want my percentile to be stagnant or to even drop. तो वो सारी की सारी चीजें आज अपन बात करेंगे. तो गाइस, सबसे पहले तो एक चीज अपन समझ लेते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. तो सबसे पहली चीज है कि क्या चीजें हैं, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट कैन नॉट चेंज. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, at this point of time when we have around 15 days left for the CAT exam, okay, one thing that you cannot change is your speed. तो यार ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, एक ऑब्सेशन होता है लोगों को, यार स्पीड रीडिंग करनी है, स्पीड करना है.
बहुत सी बुक्स होती है जिसमें स्पीड की बात होती है कि आपकी स्पीड क्या है, वर्ड्स पर मिनट क्या है, ठीक है, 4 पैसेज पढ़ लेते हो, 5 पैसेज पढ़ लेते हो, राइट? देखो यार एक चीज़ बहुत बहुत बेसिक है, यू कैन नॉट मैनिपुलेट योर स्पीड, यू कैन नॉट इंक्रीज़ योर स्पीड। आपकी इंग्लिश में सिर्फ एक्यूरेसी होती है। अगर आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, तो आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ती है। Speed is not something that you can actually improve. You can only improve your accuracy. Okay, keep that thing in mind. When I say that I'm trying to improve myself on English, okay, it simply means that I'm trying to improve my understanding, and through that understanding, I'm trying to improve my accuracy. And because my accuracy has now become better, so naturally my mind allows me to read more with the same level of accuracy. If you try to manipulate speed, okay, अगर आपको लगता है कि आप अभी करंट पेस पे 3 पैसेजेस आप पढ़ते हो हाफ एन आवर के अंदर, and then somehow you're trying to manipulate yourself into reading 4 passages in half an hour, what will happen? Your accuracy will go down, right? Speed is a long term process, and speed happens when you have been exposing yourself to a lot of content, a lot of practice. और ये जो लास्ट 10-15 डेज हैं, इवन 20 डेज के अंदर भी स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? तो स्पीड का जो ये पूरा का पूरा फंडा है वो आप भूल जाओ। स्पीड कैन नॉट चेंज। ओके, देयर कैन बी एन इम्प्रूवमेंट इन द एक्यूरेसी पार्ट, उसकी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन स्पीड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है? व्हाट एल्स कैन नॉट हैपन? सी, you should not try to now expose yourself to something that you have not been doing now. Okay, so I would say नो सरप्राइजेस। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी चल क्या रहा है। आप बहुत सारे मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि मॉक्स देना है। आप लोग काफी सारा एनालिसिस भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग वोकैब ग्रामर भी कर रहे हैं। ओके, सम पीपल आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग पैसेजेस, आरसीज, राइट? तो एक एक करके ना एक चीज समझते हैं कि यार हर चीज में गड़बड़ क्या चल रही है। देखो मॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, never do mocks that are available online and you don't have any credible source to verify whether that mock has been built to the same quality, same level as cat or not. मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो रियलिटी क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को नहीं पता कि कैट के अंदर एग्जैक्टली exactly क्या आने वाला है। नाउ व्हेनेवर यू गो फॉर द कैट एग्जाम, ओके, नॉर्मली आवर माइंडसेट इज दैट यार उस सर्टेन कोचिंग के मॉक्स करेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट को हम डाउनलोड करेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, या किसी ने हमें जाके कोई मॉक पकड़ा दिया। तो एक चीज समझना, देखो मॉक्स जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सा भी ऐसा मॉक पिक मत करो जो रैंडम हो, बिकॉज रैंडम मॉक्स आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर कॉन्फिडेंस। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, lot of these random mocks are made by people who pick up passages from a dump. That means कि they already have like 50-60 passages का सेट, या उनके पास भी कहीं और का कंटेंट होता है, उसको वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, पैराजिम्बल्स को कंबाइन करते हैं, 25-30 क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। ओल्ड पैटर्न तो 34 क्वेश्चंस बनाएंगे, अभी न्यू पैटर्न में 25 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो 25 क्वेश्चंस वो आपको प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये लो मॉक बन गया, ठीक है, तो इंग्लिश का मॉक तुम ले लो। आप ही सोचते हो यार ये मॉक अगर एक सर्टेन वेबसाइट पे से मैंने अवेलेबल कराया है या एक सर्टेन कोचिंग में से लिया है, तो उन लोगों को तो पता होगा कि कैट कैसा होता है। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ माय कैपेबिलिटीज। बट देन द प्रॉब्लम इज दैट दीज मॉक्स themselves, these people who make those mocks, okay, they are not exactly making those mocks, they are just picking up content from different sources and like they're trying to combine them into one set, ठीक है। समटाइम्स एक ही कोचिंग के अंदर हो सकता है कि भाई 5-7 लोग हों जो अलग-अलग एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हो, ठीक है? किसी ने पैराजिम्बल क्रिएट कर दिए, किसी ने आपके पैसेज क्रिएट कर दिए, या ऐसा भी हो सकता है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेजरिज्म गोइंग ऑन, दे हैव पिक्ड अप द पैसेजेस फ्रॉम सम कंटेंट ऑफ जीमैट और जीआरई, सो वी डोंट नो। तो ये एक रैंडमनेस है, ठीक है? सो यार लास्ट 15 डेज़ में ना ये ज़्यादा मॉक्स करने से तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। Whatever mocks you have been doing, do only those mocks which are of moderate to easy level का difficulty, because यार अभी जो हमारा जो फाइट है, हमारा जो कंसर्न है, वो स्पीड स्किल डेवलप करना नहीं है। हमारा कंसर्न है दैट हाउ शुड आई गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड हाउ शुड आई बी जस्ट कंसिस्टेंट। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे लेट्स से यू आर एथलीट,
Now, there is 7 days ka time left for the main event. So you will not try to transform your body in 7 days, but then you would still try to maintain your fitness levels. तो जो आपका बेसिकली काम होता है मॉक्स का वो उस लेवल को मेंटेन करना होता है. बी वेरी कॉशियस इन पिकिंग अप द मॉक्स. डोंट पिक अप मॉक्स व्हिच आर टू वे बियॉन्ड यू. ओके, व्हेन यू ट्राई मॉक्स आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 15 डेज के अंदर तो यार आप है ना ऑल्टरनेट डे से ज्यादा मॉक्स मत दो, मतलब वीक के अंदर 2 या 3 मॉक्स. ठीक है, बाकी आपका डिसीजन है. इनफैक्ट इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा कि एक मॉक अगर आप ऑल्टरनेट डे दे रहे हो उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी काफी है. लास्ट 10 डेज में से ज्यादा नहीं करो, फायदा नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, एनालिसिस की देखो बात करते हैं. अब एनालिसिस का भी एक बड़ी अजीब चीज है. देखो मैंने एक पर्सनली चीज एक्सपीरियंस की है. लोग मॉक्स देते हैं उसका एनालिसिस नहीं कर पाते. बहुत बार क्या होता है कि यार मॉक्स भी पूरा नहीं दे पाते, उसमें बोर हो जाते हैं, फिर एनालिसिस का तो सवाल ही नहीं उठता. राइट. सो why are they not able to analyze the test? Because analysis is something that is a long boring process. So दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके पास मॉक्स का जो एनालिसिस जो अवेलेबल होता है, उस एनालिसिस में कई बार हमें वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स नहीं मिल पाते. एंड समटाइम्स इवन आफ्टर डिवोटिंग टाइम टू अंडरस्टैंड अ पैसेज थ्रू द एनालिसिस, वी आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ मेनी ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो अभी यार लास्ट 10-15 डेज में देखो अभी क्या होगा. तुम ज्यादा मॉक्स करोगे ना, तो तुम्हारा एनालिसिस और भी कम हो पाएगा. तो वो क्या होगा कि भाई तुम्हें किसी पर्सन ने बोला या तुम्हारे माइंड में ये चल रहा था कि रोज का मुझे एक मॉक देना है, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी उतना नहीं है, तो वो मॉक्स जो है वो एनालाइज नहीं हो पाएंगे. बिकॉज एनालिसिस अपने आप में काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. बिकॉज यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ विद द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सम अदर पर्सन. तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि भाई मैंने कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन किया बट यू आर नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट आई सेड, बट देन व्हेन यू लिसन टू मी 2-3 times, okay, the same explanation, then maybe you become convinced, and then there is realization कि नहीं यार ये जो बंदा बात बोल रहा है हो सकता है कि उस बात में दम हो. तो यार ये रियलाइजेशन पिक करने का, ये अंडरस्टैंडिंग पिक करने का हमारे पास एक लिमिटेड स्कोप होता है. ऐसा नहीं कि आज मैं 50 क्वेश्चन से अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा और 50 की 50 मुझे इंग्लिश के अंदर वो क्लिक कर जाएंगे, और मुझे दूसरे पर्सन का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस मुझे एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो एक चीज करो, 10-15 डेज में ना लिमिटेड पैसेज करो, लिमिटेड मॉक्स करो, कम से कम मॉक्स करो. ठीक है, एनालाइज बेटर करो. ठीक है, उसको टाइम तो देखो कि गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ, सही हुआ तो सही क्यों हुआ. And very smartly, very intelligently, don't pick up a content that is difficult. इवन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह करो, लेकिन लास्ट 10-15 डेज में अगर तुमने कोई पहले का सेट किया हुआ है तो उसमें से कोई चीज रिवाइज करनी है, कोई क्रिटिकल रीजनिंग का कंसेप्ट रिवाइज करना है, कोई आपको ग्रामर का कंसेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है, कोई आपको पैराजिम्बल का कंसेप्ट रिवाइज करना है, तो कंसेप्ट देख लो कि हाँ यार पैराजिम्बल्स के अंदर देयरफॉर का ये रोल होता था, इफ के साथ ऐसा कुछ कंटेंट आता था, बट के साथ कंट्रास्ट होता था. ठीक है, ये एंडिंग स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होती थी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होती थी, ये लिंक वर्ड्स होते थे. ठीक है, वो सब ठीक है, बट इवन द एक्चुअल कैट पेपर्स माइट प्रूव टू बी टू डिफिकल्ट फॉर द करंट पैटर्न. तो पता है उससे भी तुम्हारा एक स्ट्रेस बढ़ेगा. तुम लास्ट ईयर के कैट के पेपर्स अभी एम्फेसाइज करोगे, तुम सोचोगे कि लास्ट 10-15 डेज में मैं उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल दूं, तो उससे होगा क्या कि इंग्लिश में स्पेशली, ओके, जो कंटेंट बना हुआ है पहले के कैट का, इवन मैं आपको बताऊं 2016 से पहले का जो कंटेंट है जितना भी है वो काफी काफी डिफिकल्ट कंटेंट है. Now, this is something that I think, okay, I don't know this is going to happen or not, but then I believe that level of difficulty will come down drastically. अगर तुम एक पैटर्न देखोगे तो कैट के पैटर्न में पैराजिबल्स का लेवल कम हो रहा है, धीरे धीरे आपके ऑड वन आउट इजी हो रहे हैं, आपके समरीज इजी हो रही है, और आपके पैसेजेस भी इजी हो रहे हैं. ठीक है, अगर आप पैटर्न ट्रेस करोगे, द कैट एज एन एग्जाम हैज बीन बिकमिंग इजियर. ठीक है, अभी आई थिंक शायद 2017 या 2018 की बात कुछ ऐसी थी कि भाई जब स्टूडेंट्स कैट देके आए थे तो उन्हें लगा था कि यार कैट है कि सी मैट है, मतलब इतना इजी. तो द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज कि लास्ट 10-15 डेज में अगर मैं एकदम से अपने आप को फोकस कर दूं
कैट के पेपर्स पे, पुराने वाले कैट के पेपर्स पे, 2009, 2005, 2007, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम डूइंग राइट। द प्रॉब्लम इज दैट वो एक्चुअली कैट अब नहीं आने वाला, वो चेंज हो चुका है। तो एक क्लीशेड सजेशन हमें मिला हुआ है कि यार कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स करने हैं, तो वो करने थे, अब वो नहीं करने, ठीक है? और अगर तुम्हें कुछ करना है तो पिक अप मॉक्स व्हिच आर मैनेजेबल, व्हिच आर लाइक मीडियम टू ईज़ी लेवल डिफिकल्टी। पैसेजेस की लेंथ देख लो, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए, ठीक है? डिसेंट पैसेजेस होने चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं मिलता तो तुम खुद के बना लो, ठीक है? खुद के एज़ इन कि लाइक यू कैन पिक अप सम जीमैट के 4-5 पैसेजेस का सेट, कंबाइन इट विद 10 क्वेश्चंस ऑफ पैराजिम्बल्स, 2-3 क्वेश्चंस ऑफ समरी, ओके? तो ऐसे कर करके आपके 25 क्वेश्चंस के अराउंड रख के एक साथ उनको कर लो। ओके, तुम्हें लग रहा है कि यार जो मॉक्स मुझे डाउनलोड हो रहे हैं या जो मॉक्स मुझे कोचिंग से मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो उनको हटा दो। क्योंकि यार लास्ट 10-15 डेज में कोई बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा नहीं, उल्टे सीधे मॉक्स उठा लोगे तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये मत सोचना कि इंग्लिश में कोई लॉस होगा, ऐसा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है? हर 2-3 दिन में या एवरी अल्टरनेट डे कोई मॉक दे दो, ठीक है? एनालाइज़ इट एंड लाइक जस्ट पिक अप डिसेंट, ईज़ी, नॉर्मल, मीडियम मॉक्स, ओके? डोंट गो इन फॉर एक्चुअल कैट लेंथी वाले पैसेजेस एंड लाइक ऑल दैट मॉक्स, ठीक है? कितना भी अच्छा कोचिंग हो, कितना भी अच्छा आपका क्या कहते हैं वेबसाइट हो, ये सारे का सारा कंटेंट आपका एक डंप से ही निकल रहा है और वो बेसिकली जो ऑथर्स जो बना रहे हैं उसको वो भी कंबाइन कर रहे हैं कंटेंट को, ऐसा नहीं खुद बना रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना। वोकैब ग्रामर, ठीक है, सिंपल, अगर तुमने अभी तक पढ़ी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम्हें पढ़ा है तुम उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? वोकैब में मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है? जो वर्ड पाम एडीजी में जो तुमने वर्ड्स वगैरह करे थे 12-15 डेज में, अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो किताब खत्म हो जाती है। अगर किया था तो ठीक है, नहीं किया था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एज सच वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं, इनडायरेक्टली पैसेजेस के विद इन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है? किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है? ग्रामर, ग्रामर के अंदर अगेन लाइक it's not 100% sure grammar will come, ठीक है? But if some of you have been going through grammar, if you have been looking at different grammar वाले concepts, ठीक है? अगर तुम लोग अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में भी ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत देख रहे हो, तो एक चीज़ करना कि टेंसेस देख लेना, टेंसेस देख लेना, टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, look at the concept of your modifiers, look at the concept of parallelism, okay? Parallelism and modifiers बहुत इंपॉर्टेंट है, okay? आप टेक इन द सेशंस तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। तो पैरलिज्म एंड मॉडिफायर्स वो टॉपिक आप देख लेना, कंजंक्शंस देख लेना, प्रेपोजिशंस देख लेना, ठीक है? कि कौन से वर्ब से कौन सा प्रेपोजिशन आता है, कंजंक्शंस देख लेना, प्रेपोजिशंस देख लेना, राइट? तो टेंसेस हो गया, टेंसेस है, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, ओके? सो टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स, पैरलिज्म, कंजंक्शंस, राइट? सो ये गाइस ये टॉपिक देख लेना, प्रेपोजिशंस, हाँ प्रेपोजिशंस भी है, ओके? किसी भी बुक में मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस जो आपने बेसिक कंसेप्ट्स के हैं वो देख लेना। तो ग्रामर यार वैसे आता नहीं है कैट के अंदर, लेकिन अगर तुमने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुमने पढ़ा है बस उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? क्योंकि कैट में इतना कोई टेंशन नहीं है, ग्रामर इज नॉट गोना कम, आई डोंट थिंक लाइक इवन इफ इट कम्स इट्स गोना बी नॉट मोर देन वन क्वेश्चन, सेम चीज वोकैब की है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। बट आई ऑलवेज से कि ग्रामर वोकैब इसलिए कर लो थोड़ा बहुत क्योंकि अदर एग्जाम्स में आता है, कुछ सिम्बासिस में आएगा, एनमैट में आता है, ठीक है? आपके आईएफटी के अंदर आता है, आपके दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं, सीमैट होता है, मैट होता है, जैट होता है, ठीक है? उन सब में आता है, तो पूरा का पूरा स्किप मारना थोड़ा ठीक नहीं होता, बट ठीक है, कैट के लिए इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पिक अप लाइक ईज़ी टू मीडियम पैसेजेस, इवन जो वो सजेशन जो पहले चलता था कि कैट के एक्चुअल पैसेज प्रैक्टिस करने, उनका टाइम थोड़ा-सा चला गया है लास्ट 7-10 डेज़ में। लास्ट के 10 दिनों के अंदर बस वो कांसेप्ट्स रिवाइज़ करो और नॉर्मल पैसेजेस पिक अप करो, लाइक द सॉर्ट ऑफ पैसेजेस व्हिच आर लाइक 300-400 वर्ड्स एंड लाइक 5 क्वेश्चंस इन द एंडिंग, ईज़िली मैनेजेबल विदिन 8 टू 10 मिनट्स, ठीक है? तो ऐसे पैसेजेस तुम्हें मिल जाएँगे, ठीक है? बुक्स हैं उनमें वो मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर हैं, उनमें आपको वो पैसेजेस दिख जाते हैं। तो जो वो पैसेजेस हैं उनके 4-4 पैसेज के सेट बनाओ, ठीक है? उनको 3-4 क्वेश्चंस पैराजिम्बल्स के और लाइक समरी के इनके कंबाइन करो, लाइक टोटल 25 क्वेश्चंस बना के खुद दे दो, ठीक है? तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर ईज़ी मॉक अब मिल नहीं पा रहा, हमें सारे मॉक्स बहुत टफ मिल रहे हैं और हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी उतनी
इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, राइट? आई कैन नॉट सॉल्व दिस, ओके, सो लाइक डोंट टेक दैट स्ट्रेस। अभी देखो क्या क्या चीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है? देखो तुम्हारा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे होगा वो मैं बात कर लूंगा, ठीक है? तुम्हारे कुछ चीजों में स्किल्स बढ़ जाएंगे, सीआर के अंदर जैसे स्किल्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, पैराजिम्बल्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे, ठीक है? फिर आपका जो ऑड वन आउट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है? समरी के क्वेश्चंस लास्ट में प्रैक्टिस कर लो, समरी बेटर हो जाएगी क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस आते ही हैं समरी, ठीक है? तो ये बेटर हो जाएगा, ठीक है? तो आरसी तो नहीं बेटर हो पाएगा बिकॉज आरसी इज समथिंग दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्किल, एंड एज फार एज आई नो यू पीपल हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ आरसीज, ठीक है? तो ज्यादातर लोग जो है वो 6-7 मंथ से आरसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आरसी किसी ने नहीं किया, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आरसी इज गोइंग टू टेक अराउंड 60% ऑफ द टोटल वेटेज। तो सबको पता है कि यार 60% टोटल वेटेज जाएगा, ठीक है? वीए वाला पार्ट है, वीए के अंदर स्किल चाहिए होता है, ठीक है? वीए इज मोर लाइक अ स्किल थिंग, ओके? आरसी इज मोर लाइक एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, एक्सपोजर। तो वो एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, एक्सपोजर जो था वो काफी हद तक अब तुम्हारा हो चुका, ठीक है? और अगर नहीं हुआ तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते। तो आरसी में जो होना था वो तुम्हारा हो गया, ठीक है? अब आरसी में तो बस तुम पेस मेंटेन कर रहे हो, बस ये देख रहे हो कि भाई वो जो एक प्रैक्टिस है वो बस मेंटेन रहे, तुम उसमें कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, okay? Because like in the last 10-15 days there's nothing that is going to improve your skills of RC now the only thing that you can do is like you can just go through and revise some of the basic things of VA के अंदर, like you can go through the fundamentals of paragimbals, okay? You can look at the way people solve paragimbals, okay? मेरे वीडियोस आप वो देख सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव अ गुड बुक यू कैन गो थ्रू paragimbals, जस्ट लुक एट द टेक्निक, यार कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है? बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में हमें नहीं पता क्या इजी आने वाला है, भाई ये माइंडसेट मत बना के जाओ कि आरसी सारे कर देंगे, आरसी बहुत बार नहीं कर पाते, ठीक है? एंड लाइक व्हाट इफ यू हैव अ पैटर्न वेयर देयर आर 15 क्वेश्चंस ऑफ आरसी एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ वीए, वी डोंट नो, ठीक है? बिकॉज ऐसी कोई गारंटीड कहीं पे कोई चीज लिखी नहीं हुई दैट आरसी में हमेशा वेटेज ज्यादा है कि वीए का वेटेज ज्यादा है, ठीक है? हम मानते हैं कि 60% गोज टू आरसी एंड लाइक रेस्ट गोज टू वीए, but then we can always expect more questions from the VA side. Like right now, we are saying that okay, out of 25 questions, 8 questions will be from VA. बट एक चीज ध्यान रखना, VA के अंदर आपका टीटा टाइप आ जाता है, टीटा टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं लगती, ठीक है? तो अगर तुम सिर्फ VA भी कर देते हो तो उसके अंदर ही 80-85% का इंतजाम हो जाता है अगर प्रॉपरली सारे सही कर दो, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली भाई यू आर गोइंग टू लुक एट आरसी, आर गोइंग टू लुक एट VA, बट जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अपने को दोनों को हैंडल करना है, और जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी वो डिपेंड करेगी कि वहां पे एक्चुअल एग्जाम में क्या आता है। जो इजी होगा वो अपन पहले करेंगे, उसको अपन ज्यादा बेटर करेंगे, ठीक है? अगर आरसी टफ आ गए तो मे बी आई वुड डू ओनली 2 आरसी आउट ऑफ 3, ठीक है? 4 आरसी टोटल आ गए और टफ आ गए तो 3 आउट ऑफ 4, ठीक है? अगर मुझे लगा बहुत ज्यादा टफ आ गए तो देयर माइट बी अ सिचुएशन की 4 में से मैं 2 ही कर पा रहा हूँ, ठीक है? सो लाइक देयर इज नथिंग दैट इज डिसाइडेड, वी डोंट नो, ओके? वी डोंट नो। और 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स टाइम बहुत कम है, ठीक है? सो व्हाट यू कैन डू लास्ट के अंदर ना, ये जो सीआर है, पैराजिम्बल है, ऑड वन आउट है, समरी है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, इनको ढंग से कर लो, ओके? क्योंकि आरसी तो तुम कर चुके हो, अब आरसी के अंदर अब लास्ट एक वीक में कुछ नहीं होगा, ओके? बस वो प्रैक्टिस अभी तुम इसलिए कर रहे हो आरसी में सो दैट योर पेस इज मेंटेन, वट एवर यू हैव डन यू हैव जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन इट, आप उसको मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज आरसी इज लाइक अ लॉन्ग टर्म स्किल, इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्स एक्सपोजर, इट रिक्वायर्स योर अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर, ये सब लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं, ये आपकी डेवलप हो चुकी। वीए का जो पार्ट है उसका एक शॉर्ट टर्म एलिमेंट भी है क्योंकि उसमें कई चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर की हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन सीआर दैट यू कैन डेवलप इन शॉर्ट टर्म, ओके? हाउ टू फाइंड एजम्पशंस, अच्छा यार ये एजम्पशन मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी हो सकता है, यार पैराजिम्बल में यार ये कनेक्शन भी बन सकता है, ये सब क्या शॉर्ट टर्म स्किल्स हैं, अगर आप 7-8 डेज के अंदर वर्क करते हो तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है ना? और बाकी आरसी में तो तुमने किया ही है, ठीक है? तो वो अच्छा है, ओके? सो यार अब है ना, देखो स्ट्रेस के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ। मैंने देखो अभी तक आपको एक दो चीजें बोली, मैंने एक चीज कही कि भी आरसी में इंप्रूवमेंट अब उतना ज्यादा नहीं होगा, वीए के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? मॉक्स हम लोग इसलिए दे रहे हैं बिकॉज मॉक्स से हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है, बाकी हमें भी पता है कि अब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है?
एक चीज़ मैंने और कही कि ज़्यादा टफ मॉक्स मत देना क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। फिर मैंने ये भी चीज़ कही आपको कि कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स भी ज़्यादा मत देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल भी अब जो कैट आएगा उससे काफ़ी अलग है, ठीक है? तो वो कैट के पेपर्स प्रैक्टिस के लिए थे और तुमने प्रैक्टिस कर ली। लास्ट 7-10 डेज़ में उनको वापस से प्रैक्टिस करना है तो ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपने किया हुआ रिवाइज़ करना है, ठीक है। बट उसमें से भी अगर कोई तुम नया पैसेज और नए पैसेजेस के सेट उठाने लग जाओगे, you might find that you are losing confidence because even those papers were very tough as compared to the latest pattern. क्योंकि अभी जो कैट है ना वो ईज़ी होता जा रहा है। तो 2016, 2017, 2018 का जो कैट का जो तुम्हें लेवल दिखेगा वो उससे पहले के कैट से काफी इजी है, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में क्रिएट कर देगा क्योंकि तुम ये सोचोगे कि यार मैंने 2007 का कैट का पेपर दिया, 2005 का कैट का पेपर दिया, वो इतना टफ था तो ये भी टफ आने वाला, तो ऐसा नहीं है, उनकी डिफिकल्टी लेवल्स अलग है। तो यू कैनॉट, यू लाइक आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट डू मेनी पैसेजेस ऑफ दैट एरा नाउ, ठीक है? कि यार उस टाइम के 10 साल पहले का उठा के अभी मैं खूब सारा प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है? तो वो मत करो। ओके, स्ट्रेस, व्हाई नॉट स्ट्रेस? देखो, व्हाई व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग? यू आर स्ट्रेसिंग बिकॉज यू थिंक दैट समथिंग कैन बी डन। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो होना था वो हो गया, आरसी वगैरह तो अब हो गया, तुम्हारा सेटल हो गया, ठीक है? अब जितना भी है वो वैसे ही रहेगा। वीए के अंदर मैंने आपको बताई दिया, वीए में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा बिकॉज वीए इज अ स्किल बेस्ड थिंग, सो देयर आर लिटिल लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो चीजें हमें क्लिक करती है, जो चीजें बेसिकली आपकी आरसी में भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंप्रूव होगी ना, वो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? छोटी छोटी चीजें मतलब जैसे कोई टोन्स आपको पता नहीं है, आप टोन्स के नेम्स रिवाइज कर लो। आपको like you don't know exactly how to find the assumption in a given argument, okay? So you can find out that in a given question how to find inference, okay? You can do some questions based on inference and you can know exactly यार inference कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो एक तो ये चीज हुई। अब अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे एक्यूरेसी लेवल से इन्फ्लुएंस होंगे, एक्यूरेसी में इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है? अब देखो शॉर्ट में बताता हूँ क्या चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्ट्रेस मत लो क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका। नाउ यू जस्ट गोइंग देयर एंड परफॉर्म। So if you want to perform well, you have to keep your stress levels down because if your stress levels are down, then your accuracy goes up. बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि सर हम मॉक्स देते हैं, ठीक है? खास करके मेरे से कई लोगों ने पूछा है इंग्लिश के अंदर। इस ईयर भी वही चीज हो रही है, सर इन अ सर्टेन मॉक आई गेट 60 percentile. Then the same student says, sir, in a certain mock I got 85 percentile. And then sometimes the same student would also get a 95 percentile. ठीक है, किसी स्टूडेंट का 70-75 परसेंटाइल चल रहा है, एक सर्टेन मार्क में उसका 95-99 भी आ गया, तो ऐसा कैसा होता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि द सेम स्टूडेंट हु इज गेटिंग 70 परसेंटाइल इज आल्सो गेटिंग अ 95 परसेंटाइल इन सम अदर मॉक? व्हाट इज हैपनिंग? तो उसके देखो दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि एवरी मॉक इज सेट विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सो एक सर्टेन मॉक के अंदर देयर वाज अ सर्टेन कंटेंट दैट सूटेड यू, ठीक है? कुछ ऐसे पैसेजेस आ गए जो आपके फेवरेट एरियाज के थे, ठीक है? मुझे साइंस पसंद है, साइंस के पैसेज आ गए। तो एक तो ये रीजन है दैट एवरी मॉक इज सेट विद अ डिफरेंट कंटेंट एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट द कंटेंट सूट्स यू एंड योर माइंड इज एबल टू लाइक your mind is able to capture the idea of discussion, your mind is able to exactly connect with the sort of content that you see there. तो एकदम से कनेक्शन बन जाता है, वो कंटेंट आपको क्लिक हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि a lot of times you see the English section and you find that the content is too way beyond you. The sort of topics that you see, the genres that you see are way beyond you. ठीक है? तो एक तो वो रीजन होता है कि यार वो क्यों फ्लक्चुएट होते हैं स्कोर्स। दूसरा रीजन जो होता है ना जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि समटाइम्स यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, किसी भी रीजन से आपकी नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है? यू हैवंट टेकन मच रेस्ट और यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स या कोई और रीजन है। वो स्ट्रेस क्या करता है, आपका एक्यूरेसी को कम कर देता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सर एक्यूरेसी क्यों हमारी फ्लक्चुएट हो रही है, तो देयर आर टू थिंग्स मे बी in some sections, in some mock tests you get a content that suited you and that is why fluctuation happened, or maybe in some test you were under a lot of pressure और उस pressure की वजह से your accuracy level went down। तो भाई तुम्हें ये लास्ट 7 डेज में ना अपना स्ट्रेस कम रखना है, क्योंकि अगर तुमने स्ट्रेस कम नहीं रखा व्हाट विल हैपन, you will go in the exam hall, your stress levels are high, you are under a lot of pressure,
what is going to happen? Your accuracy levels will go down. Okay, so you cannot improve skill now, you cannot improve your speed now. Okay, there is some improvement in accuracy that is possible, वो भी VA वगैरह के अंदर। आरसी में तो अभी इतना ज्यादा improvement नहीं आएगा। ठीक है, आरसी तो बस अभी प्रैक्टिस और मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट आ सकता है ना, वो आ सकता है कि अगर तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर आ गया, तुम्हें ये पता चल गया दैट देयर इज नो रीजन टू स्ट्रेस सो मच राइट नाउ बिकॉज इट इज हैम्परिंग माय लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। तो ये चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, इफ आई गिव एनी टेस्ट इन स्ट्रेस, ओके, माय लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस विल गो डाउन। ठीक है, तो मेरे साथ होता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती, फ्लक्चुएट इसलिए करते हैं। ओके, यू कैन परफॉर्म बेटर देन यू थिंक। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे इसका रीजन है। ठीक है, तुम्हारा अगर अभी यहाँ पे 70 परसेंटाइल चल रहा है किसी भी कोचिंग में, ठीक है, 60 परसेंटाइल चल रहा है, 70 परसेंटाइल चल रहा है, 80 परसेंटाइल चल रहा है, whatever your percentile is, in the actual cat your percentile is going to increase by 15-20%। अब मैं उसका देखो रीजन बताता हूँ आपको क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन है, एंड आई ऑलवेज से दिस। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है। like when I gave my cat in 2016, okay, like even I was surprised by the scores that I got in the sections। okay, especially मुझे इंग्लिश में तो एक्सपेक्टेड था कि भाई हाँ 99.99 प्लस आएगा, बट बाकी सेक्शंस में भी मुझे लगा कि भाई मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्कोर आया। उसका रीजन देखो बहुत सिंपल सा है। द रीजन इज दिस, in the coachings, in the practice tests, in the mocks that you compare your score with other students, every student is competitive, right? So it is difficult to get percentile. And what is percentile? Percentile is the percentage of students below you. In the actual exam, there is easily 25% crowd that goes without any preparation, या उनका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, बाकी वीक होते हैं। तो वो सिंपल जो क्राउड है 20-25%, which is going who is going inside without preparation, those people will go below you, वो तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। तो उनकी जो नंबर है वो 25% है, अगर 100% एज्यूमिंग टोटल नंबर है, तो दैट विल improve your percentile, because what is percentile? Percentile is the percentage of students below you। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे 70 परसेंटाइल चल रहा है और वहां पे 20% क्राउड ऐसा आ गया जो नॉन सीरियस है, ठीक है, जो कि आएगा ही ऑब्वियसली। एनी पर्सन हु स्टडीज इन अ कोचिंग gives money and is serious, but in the actual cat paper there are many people who just write cat for the heck of it। तो वहां पे वो जो 20% बच्चा जो तुम्हारे से नीचे है वो तुम्हारी परसेंटाइल को 20% ऊपर कर देगा। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलो यू, तो तुम्हारी 70 से 90 हो जाएगी विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल गिव यू सम पर्सपेक्टिव, एंड you will obviously perform better than what you are doing here। okay, your percentiles will naturally go up। okay, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग माइंडसेट, तो गाइज ये चीज मैंने अभी आपको कही कि जो तुम्हारा होना था वो अब हो चुका है 7-10 डेज के अंदर, बस चीजें रिवाइज हो रही हैं। चीजें क्या कहोगे आप? you're just trying to reconcile, you're just trying to connect things, you're just trying to make connections with whatever you have been doing all these days, right? so वो चीजें अभी चल रही हैं। ओके, कुछ भी आप नया नहीं पढ़ रहे, कोई भी ऐसी डेंजरस खतरनाक कंटेंट आप नहीं उठा रहे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस उससे कम होता है। तो विनिंग माइंडसेट क्या है? विनिंग माइंडसेट इज दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मी। और वो होता है यार, जैसे आज सपोज करो कि आप कैट एग्जाम दे रहे हो, and let us say you have prepared for 7 months, but then there are certain things that are beyond you। आपका आपकी कैट में परफॉर्मेंस बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। आपका बैकग्राउंड क्या है? एक इंजीनियर का जो मैथमेटिक्स का लेवल होगा वो कॉमर्स के बच्चे के लेवल से ज्यादा होगा एनी डे। ठीक है, आपका एक्सपोजर कैसा है? if you come from a family where the people always spoke in vernacular, okay, and you have not been exposed to the sort of readings that other person is, okay, how would you think that your English levels would be as good as that person? okay, it cannot happen। okay, you cannot change your background। तो बेसिकली यार हमें ये चीज रियलाइज करनी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो भाई हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, मैं कैसी फैमिली से आता हूँ, मैं कैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने लास्ट 20-22 सालों में मैंने क्या किया अपने लाइफ के साथ, वो चीजें मैं चेंज नहीं कर सकता। आई हैव डन माई बेस्ट इन द लास्ट 5-7 मंथ्स, आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट। अब यार वो चीजें चेंज नहीं हो सकती तो मैं क्या करूँ? ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज इन माई हैंड।
So I have done my best, I have given my best shot, and I'm going to perform my best, and I'm not going to take that pressure कि यार आगे क्या होगा, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, और जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी। ठीक है, तो वैसे तो चीजें फिक्स हो चुकी हैं, राइट। अब जो चीजें हमारी प्रिपरेशन से रिजल्ट देंगी, ठीक है, उसको लास्ट 7-10 डेज में हमें टेंशन लेके बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, और रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, तुम ये चीज समझना दैट देर इज ओनली like there are only few things that you can actually control. There's certain things that would always be beyond you. तो डे वन से तुमने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब से ही बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड थी। तो ना तो तुम उन्हें अभी तब कंट्रोल करते थे, ना तुम उन्हें अब कंट्रोल करते हो। तुमने अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो तुमने कर दिया, और अब जो रिजल्ट आएगा वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो जैसा भी हो यू वुड एक्सेप्ट इट, एंड लाइक ऑब्वियसली दैट्स द सॉर्ट ऑफ माइंडसेट यू गो इनसाइड विद। और उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है who has always been a 60% student in commerce and he gets even a 80% on cat, he's happy। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई हैप्पीनेस का कोई या सक्सेस का कोई पैरामीटर किसी ने आके सेट कर दिया है कि नहीं यार इतनी परसेंटाइल आएगी तो ही हम विनर कहलाएंगे। ओके, एवरी पर्सन इज सक्सेसफुल इन हिज और हर ओन वे। ठीक है, और आगे की जो चीजें हैं वो भी बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इवन पीपल विद गुड परसेंटाइल्स डू नॉट एंड अप विद अ गुड करियर, एंड लाइक गुड करियर इज नॉट इक्वल टू गुड पैकेज। ओके, एंड गुड पैकेज इज नॉट इक्वल टू गुड लाइफ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे आते हैं। तो यार ये सब चीजें जो हैं ये हमें नहीं टेंशन देनी चाहिए। कैट इज नथिंग बट इट्स लाइक जस्ट अ पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड वेदर you do well or you do average or you do better than the average, it does not matter in the bigger picture. You go there with a winning mindset। ठीक है कि यार मुझे अपने हिसाब से बेस्ट करना है, और जो बेस्ट है जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता था और वो मैंने कर दी। ठीक है, तो गाइज ये चीज थोड़ी सी मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो इससे तुम्हारा टेंशन जो तुम्हारा स्ट्रेस है वो कम रहेगा। अवेयरनेस ऑफ टाइम मैटर्स, सिंपल से शॉर्ट में अवेयरनेस ऑफ टाइम मैटर्स मीन्स कि यार ये ना लास्ट 7 डेज में ये चीज तुम कर सकते हो, 7 to 10 डेज में। इसको देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होता है, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं किसी पैसेज को लेके, अगर इस पैसेज में इतना टाइम लग गया इसको तो सॉल्व करेंगे। फिर तुम्हारे साथ कई बार ऐसा होता होगा कि यार तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार पैसेज तो चलो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यार टाइम तो 15 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए, एक पैसेज में 15 मिनट्स निकल गए यार, पता ही नहीं चला। ठीक है, ये चीज तुम्हारे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हें लास्ट में मॉक्स के अंदर भी जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए वो यही है, सिनेरियोज तुम्हें बिल्डअप करने हैं। You have to take only, you have to consider those scenarios, right? कि if I have 4 passages and 2 are difficult, okay, I'm going to do the 2 easy ones। ठीक है, उन easy के लिए मैंने approximately 10 minutes दिए तो मेरे 20 minutes में हो गए। और जो 2 डिफिकल्ट है उसमें से चलो यार एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा करना है, चलो ये वाला कर दिया। ठीक है, तो इसमें 10 मिनट्स लगे तो आप वॉच को देखते रहो। ठीक है, लुकिंग एट दी वॉच, क्योंकि ओके नाउ आई हैव डन 3 passages 30 minutes, 10 मिनट्स बचे हैं, चलो वीए को कर देते हैं। ठीक है, if you lose sight of the watch, blunders will happen। ठीक है, तो यार अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने टाइम मैनेजमेंट पे इतना ध्यान अभी तक नहीं दिया है, तो मैं अभी आपको कॉशियस कर देता हूँ। यू माइट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन, यू मे बी वेरी इंटेलेक्चुअल, you might have super supernatural qualities of comprehension and all that, but don't मेक ब्लंडर्स इन टाइम मैनेजमेंट। तो भैया देखते रहो कि पैसेज हुआ कितना टाइम गया, एक पैसेज में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे। ठीक है, मैं एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ तो क्या ये वर्थ इट है? ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला पैसेज है ये मुझे करना है कि नहीं करना, या नहीं करना, अच्छा नहीं करना तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 4 में से अगर 3 ही करना है तो फिर ठीक है, ये 3 अपन कर लेंगे हाफ एन आवर में, 10 मिनट में अपना वीए कर देंगे। ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन एट द बैक ऑफ द माइंड शुड ऑलवेज गो ऑन। ठीक है, तो don't get engaged so much engaged in a passage, or don't get so much engaged in a VA question that you lose track of the time। टाइम शुड ऑलवेज बी देयर एट द बैक ऑफ द माइंड। ठीक है, वो वॉच में आप देखते रहो, बार बार कंसल्ट करते रहो, जो टाइमर चल रहा है उसको देखते रहो। ठीक है, एंड जस्ट बी ऑन ट्रैक, दैट्स इट। ओके, तो ये चीज अभी आप जब लास्ट 5-7 डेज में जो भी 1-2 मॉक्स दोगे उसमें थोड़ी सी ध्यान रखना।
ओके, सो हाउ टू हैव अ काम माइंड बिफोर द एग्जाम? ओके, सिंपल सी 2-3 चीज़ें। एक प्रॉपर स्लीप, ओके, 8-9 आवर्स कोशिश करो अगर ले सकते हो तो, ठीक है? स्पेशली जो लास्ट 7 डेज़ है उसमें प्रॉपर स्लीप। स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हम रियलाइज़ नहीं करते। स्लीप इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्लीप, ओके, पूरा प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीप कम होगी ना तो माइंड का जो एक आई वुड से दैट द मेंटल एक्टिविटी गोज़ डाउन इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। तो स्लीप का एक चीज़ ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है? हैव अ स्टोइकल माइंडसेट। तो ये तो अभी मैंने तुमसे डिस्कस कर ही लिया, स्टोइकल माइंडसेट। क्या चल रहा है बाहर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है, ठीक है? जो मुझे करना था मैंने कर दिया, ठीक है? बस मुझे जाना है और मुझे परफ़ॉर्म करके आना है। For me now, CAT is a process. Okay, I have to complete that process in the best possible manner. I don't have to be emotionally invested in this process. क्योंकि इमोशनली तुम इन्वेस्ट हो गए ना तो फिर तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा, तुम्हें टेंशन हो जाएगा, ठीक है? तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आना है, ठीक है? और उससे फिर डिस्कनेक्ट हो जाना है, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, ओके? यू हैव डन योर बेस्ट एंड दैट इज इट, ओके? तो एक स्टोइकल, एक इक्वानिमस माइंडसेट यू हैव टू मेंटेन, ओके? और मुझे लगता है तुम कर भी लोगे, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों से कन्विंस्ड हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार इसका रिस्क टू रिटर्न पे ऑफ अच्छा है, ठीक है? तो वैसा माइंडसेट रखना है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, ठीक है? साइकिल माइंडसेट रखना है, ठीक है? और यू हैव टू थिंक लाइक अ विनर। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आप जा रहे हो, विनर माइंडसेट एक रखो, दैट यू आर गोना परफॉर्म योर बेस्ट, ओके? विनर्स का ऐसा नहीं होता कि भाई किसी की तुलना में आप अपने आप को विनर मानते हो, आप अपने कंपैरिजन में विनर होते हो। सो अगर मैं अपने कैपेसिटी से बेटर कर पाया तो मैं अपनी नज़रों में विनर हो गया। दैट मीन्स कि अगर कल तक मेरा परफॉर्मेंस इतना था, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है? या आई ऑलवेज थॉट दैट ओके आई कैन परफॉर्म टू दिस लेवल, ओके आई एम अ 70 परसेंटाइल का स्टूडेंट, आई नो डीप इनसाइड माई सेल्फ। और अगर मेरा कैट में 80 भी आ गया तो दैट इज ऑल्सो विनर, राइट? तो विनर की कोई डेफिनेशंस नहीं है कि यार वो बच्चा 90 लाता था तो मेरे को 95 ही लाना है। और तुम्हें क्या पता उसका बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें क्या पता कि उसने लास्ट 22 ईयर्स के अंदर क्या क्या किया है, या व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट ही ऑलरेडी हैड? तो तुम्हें नहीं पता। तो ये सारी तुम चीजें क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो तुम उन चीजों को कॉपी भी नहीं कर सकते, तुम उन चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, राइट? सो remember this always, that there are only few things that you can control, and then once you realize this कि यार हमारे कंट्रोल में तो जो चीजें हम तो कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार हमने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, नाउ देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन डू, सो आई हैव डन माय जॉब एंड आई हैव डन इट टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी एंड दैट्स इट, ओके? So guys, I hope ये सेशन तुम्हें हेल्प किया, okay? And I believe that after listening to me you will be able to maintain that quite calm, equanimous, stoical mindset। और वही चीज इंपॉर्टेंट है लास्ट 7-10 डेज में, ये चीज तुम करोगे तो तुम्हें जो भी अभी तक का जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है टाइम का, एफर्ट का, उसका तुम्हें नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, एंड लाइक आई एम गोना रेगुलरली सी यू इन सम ऑफ दीस सेशंस, ओके? तो अभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड परफॉर्म वेल, ओके? सी यू, थैंक यू।